Good morning, student. Welcome to class 11, commerce section. क्लास स्टार्ट हो रहा है आज से, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय योर सिलेबस, दैट मीन्स द बुक्स अवेलेबल है स्कूल में, आके आप इसको ले जा सकते हो एनी टाइम. वी आर ऑल्सो इन द स्कूल एट प्रेजेंट. आओ मिलो, इंट्रोडक्शंस दो, बुक परचेज करो, कुछ समझ के घर चले जाओ. So very essential part of this your life to first to take the advice of your teachers according to the subject. Read it properly, questions करो, आंसर लो, again question करो, repeated cycle will be benefited for your life. तो स्टार्ट करते. मैंने कल आप लोगों को एक ऑडियो दिया था, द सिनॉप्सिस ऑफ द टोटल कॉमर्स की क्या है, व्हाट एवर द सब्जेक्ट, क्या मार्किंग है, इन डिटेल्स में धीरे धीरे डिस्कस कर लूँगा. अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स इज माय सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स में मैंने कल डिस्कस किया था ऑडियो में कि देयर इज ए टू बुक्स. One is the statistics and other is the economics, which is microeconomics. Economics, there is a two part. One is the micro and other is the macro. Micro means small, macro means as a whole or word. Economics, एक word, it is a Greek word, better than say. The coming from the word oikos, O-I-K-O-S. Oikos is a Greek word which means a house, and the second name Nemein, N-E-M-E-I-N, means to manage. So what will be the full form? Oikonomais is converted to economics. It is English word. So oikonomai is a Greek word converted to English word economics 1776. तब से ये वर्ड वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, एंड देयर इज ए सस्टेनेबल मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. टोटल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन दिस वर्ड इकोनॉमिक्स. टोटल वर्ल्ड. सो come to the study. Oikos, Nemein, come to the economics meaning. Oikos means a house and Nemein means to manage. That means it's called the household management. शुरू में इसको हम लोग जानते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल मैनेजमेंट. सो देखो 1776 से इस subject is studied and it is in our life. Without economics we can not to walk a steps. एक step भी हम आगे नहीं जा सकते without the word of economics. तो is a very important topics, subject, and also कल मैंने डिस्कस भी किया था, is a good career in your future. जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स लेके स्टडी करना बहुत सारे स्टूडेंट पसंद नहीं करता. टू सम एक्सटेंस थोड़ा सा उस हिसाब से देखेंगे तो फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है 100%, बट देयर इज अ गुड मार्केट एट प्रेजेंट इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर for service. So economics is the household management or it is a political economics. There is so many economics in the market. Out of that, I just going to be discuss one or two or three or four.
which come to the point of economics definitions. Economics first name आता है एडम स्मिथ, ADAMSMITH. एडम स्मिथ, इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिक्स की एक वर्ड डिफाइन करके दिया था, which is known as science of wealth. Economics is nothing, it is a science of wealth. What is the meaning of wealth? Wealth meaning is the money. So now come to the point. मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, economics is the term which is related throughout the world. Each and every case we are thinking about the economic condition. Economic means money, means wealth, means your affluency, your income. अभी तुम लोग सुन रहे हो इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना अटैक शुरू में 58 days was total lockdowns in the industrial sector, service sectors, production sector. कुछ नहीं था, सारे हम लोग घर पे बैठे थे. तो क्या हुआ? परचेज सेल हुआ नहीं है, प्रोडक्शन हुआ नहीं है, इंसान ह्यूमन बीइंग सर्विस में गया नहीं है, इनकम हुआ नहीं है, खर्चा हुआ नहीं है. दैट मीन्स इकोनॉमिक्स बिकेम ए स्टॉप. इज इट पॉसिबल टू कंटिन्यू? नो. दैट इज वाई धीरे धीरे हम लोग बाहर आ रहा है, प्रोटेक्शन लेके चल रहा है, सावधानी मेंटेन कर रहा है. बिकॉज वी हैव टू वर्क. Without work, there is no economy. We have to produce, we have to purchase, we have to consume, we have to sell, we have to earn income. That is economy. So, the greatest economist, Adam Smith, इन्होंने economics को define किया था the word science of wealth. Wealth means money. What is wealth? It is the money. What is money? Money is what the goods which satisfied. Money is that or what which is. एक मनी का डेफिनेशन दे देता हूँ. मनी इज व्हाट विच इज मनी डू. मनी वही है जो मनी करता है. दैट मीन्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. मेरा जो वांट्स है, आपकी जो इंटेंसिटी है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो विलिंगनेस है, वो कौन सेटिस्फाई करता है, कौन फुलफिल करता है? इज ओनली द वन वे, दैट इज कॉल्ड द मनी, एंड दैट इज रिलेटेड विद द वेल्थ, एंड वेल्थ रिलेटेड विद द इकोनॉमी. सी द साइकिल. तो उन्होंने एक सिंगल वर्ड बोला था, साइंस, साइंस ऑफ वेल्थ, और विच इज मीनिंग द मनी. And money is what? Good which satisfy the human being, and that is the economy. Without money, हम कुछ भी नहीं सोच सकते आज के दिन में. Not a single point. Clear? The definition wise, it is a wealth. Wealth means money which satisfy the human being at every steps in their life. Second is Alfred Marshall is a very top class economist. ALFREAD, Alfred, MARSHALL. जब बीकॉम में जाओगे, मास्टर डिग्री करोगे, अगर इसी लाइन में करोगे, इकोनॉमिक्स लेके पढ़ोगे, तो बहुत सारे किताब तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे. आउट ऑफ दैट दिस 4 इकोनॉमिक्स इज द टॉप मोस्ट. एडम स्मिथ, Alfred Marshall, Samuel Shells, American economics, and Leonard Robbins. क्या है? ये सारे इकोनॉमिक्स तो है, बट इन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा राइटिंग किया, बहुत बड़ा बुक्स हैं इनके ऊपर. सैमुअल शेल के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर बहुत बड़ा बुक है. हम लोग वहाँ से कुछ टॉपिक को चुन के लेते थे. इट इज़ वेरी कॉस्टलियर बुक, तो लाइब्रेरी से तुम्हें उसको कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो भी है. तो दीज आर द 4 आउट ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक्स इन द मार्केट.
These are the top class economists. So Albert Marshall क्या बोल रहा है? It is a study of man in the ordinary business life. Normal business life में एक ह्यूमन बीइंग की स्टडीज को बोल रहा है इकोनॉमिक्स. क्यों बोल रहा है ये बात? दैट मीन दिस इज अ वेलफेयर. एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लाइफ होता है, दैट इज अ वेलफेयर लाइफ. सुबह उठो, अपना काम करो, ऑफिस जाओ, काम में जाओ, काम करो, अर्न करो, घर लौटो, कंजम्पशन करो, मतलब खाना वाना खाओ, एंड देन टेक द रेस्ट. Welfare. So, in the word of Albert Marshall, it is a studies of man in the ordinary business life. Normal business, कोई hazard नहीं है, simple. तो उसमें हम क्या करेंगे? It is a welfare situations, a relaxation mood, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल प्रोसीड कर रहा है. तो ये जो लाइफ स्टार्ट हुआ सुबह से लेके एंड तक, दिस डिपेंडिंग ऑन द टोटल इकोनॉमी. जस्ट थिंक, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते सुनते देखते देखते एक बार सोच भी लो. दिस इज इकोनॉमी. नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग टू द साइमनसन. साइमनसन क्या बोल रहा है? द ग्रोथ ओरिएंटेड. साइमनसन की लैंग्वेज बोल रहा है इट इज ए ग्रोथ ओरिएंटेड. हाउ द मैन एंड सोसाइटी चूज with or without money to employ the some productivity and resources. कैसे वो अपना इनकम के थ्रू प्रोडक्टिविटी को या रिसोर्स को चूज करेगा. ग्रोथ ओरिएंटेड मीन्स हाउ टू ग्रोथ अपने आप को. हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग, अगर हम सोचेंगे, हर सोसाइटी, हर ऑर्गेनाइजेशंस इज थिंक अबाउट हाउ टू ग्रोथ माई सेल्फ. तो ग्रोथ से देखो, जैसे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने का एक रिलेशन क्या है? ग्रोथ कब होगा? व्हेन यू अर्न मोर इनकम, व्हेन योर इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग देन द अदर, देन यू विल टेक द ग्रोथ. आज इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इज ए डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग, दैट मीन द कर्व इज गोइंग स्लो 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 अपवर्ड्स. ऑन द अदर एंड यूएस को क्या बोलेंगे? इज ए डेवलप, ऑलरेडी कर्व स्ट्रेट लाइन में चला गया, डेवलप हो गया, अब सैचुरेटेड पीरियड है उनकी. अब वो जितना ग्रोथ लेगा वो उनकी सेविंग्स में चला जाएगा. बट वी आर इंडियन और इंडिया इज ए डेवलपिंग. हम जितना अर्न करेंगे, इनकम करेंगे, कंट्री वाइज बोलेंगे, तो उसमें से कुछ खर्चा करने पड़ेंगे डेवलप के लिए, हम कुछ सेविंग्स भी करने पड़ेंगे कल के लिए. So what is the meaning or what is the difference developing and develop? Develop means total, अब जितना अर्न उतना ही सेविंग्स, नो एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चा करने का रास्ता नहीं है, जगह नहीं है. डिफेंस क्लियर, हॉस्पिटैलिटी क्लियर, प्रोडक्टिविटी क्लियर, रोड स्ट्रक्चर क्लियर, रेलवे ट्रैक क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर, वेलफेयर सेक्टर पूरा क्लियर. वहां पे कोई चांसेस ही नहीं है. कुछ रिक्वायरमेंट हो गया, बना दिया. बट इन आवर कंट्री स्कूल जरूरत है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, रोड की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो एवरी एंगल देयर इज ए स्केर्सिटी. अब नाउ द व्हाट कम, द स्केर्सिटी मींस रिक्वायरमेंट है नहीं. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली नहीं है, शॉर्ट है. प्रोडक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं है, शॉर्ट है. रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं है, शॉर्ट है. ट्रेन रेलवे ट्रैक की कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं है, शॉर्ट है. अभी भी कितना रिमोट एरिया है इंडिया के जहाँ पे ट्रेन की लाइन ही नहीं गया, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ब्रिज नहीं है, कनेक्शन डिफिकल्टीज हो गया. देयर इज ए वाटर लॉगिंग, पानी है, पानी के ऊपर ब्रिज नहीं है, आना जाना बंद है, इकोनॉमिक रिजल्ट. अभी भी कितने रिमोट एरिया है जहाँ पे टेलीफोन तो दूर की, मोबाइल तो दूर की बात है, टेलीफोन में लाइन भी नहीं है. दे आर द आउट ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है. दिस इज इकोनॉमी. सो द साइमनसन सेज द ग्रोथ ओरिएंटेड, दैट मीन्स ग्रोथ चाहिए हमें. तो ग्रोथ चाहिए तो क्या करने पड़ेंगे? इनकम करने पड़ेंगे. इनकम कैसे करेंगे?
प्रोडक्टिविटी करेंगे, प्रोडक्टिविटी करके क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, सेल करेंगे तो क्या आएगा, मनी आएगा, एंड मनी इज माई वेल्थ। वी सेटिस्फाइड, उसके बाद हम अपने हिसाब से परचेस करेंगे फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन। तो देखो रिलेशन कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक्स वाइज their language are different, but it is come on a single point, that is the economy, that is the money, that is the welfare, that is the improvement or growth. Last, Lionel Robbins, Lionel Robbins, this is a very also gets, इनके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर एक बहुत बड़ा बुक है, डिमांड एंड सप्लाई तुम लोग जाके क्लास 12 पे रीड करोगे। इन्होंने क्या बोला, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर आर रियलाइज्ड बिटवीन द एंड्स एंड स्कैरसिटी। अब ये दो वर्ड आ रहा है, एंड एंड स्कैरसिटी। एंड मतलब खत्म, स्कैरसिटी मतलब डेफिशिएंसी, अल्टरनेट यूज। स्कैरसिटी मीनिंग कमी, पानी नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। फ्रूट्स नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ फ्रूट्स। लैंड नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ लैंड। आज के दिन में क्या हो रहा है, सारे कल्टिवेटेड लैंड अथॉरिटी एक्वायर कर रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करके दे दिया हाउस होल्ड रहने के लिए। अब धीरे धीरे लैंड खत्म हो रहा है। रिमोट एरिया में जाएंगे तो वहां पे लैंड मिल जाता है, अदरवाइज इन द सिटी बैकग्राउंड में जाके लैंड की कमी आ रहा है, कल्टिवेशन की कमी आ रहा है। स्कैरसिटी ऑफ द cultivated land, scarcity of the electricity, scarcity of the mobile tower, scarcity of the food grain, scarcity of the cotton clothes, scarcity of the technological solution. Now come back again, scarcity the root economic problem, economic problem नहीं है तो लाने पड़ेंगे। कैसे लाएंगे, ग्रोथ से, ओरिएंटेशन से एंड द वेल्थ से। आ गया इकोनॉमिक्स में दोबारा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, मीन्स इट इज a combination of wealth, welfare, scarcity and growth orientation. 1, 2, 3, 4. These 4 combinations comes to the line economics. Very interesting. धीरे धीरे पढ़ोगे, interesting but boring है थोड़ा सा, but read it. There is a good options in your future. इकोनॉमिक्स आगे जाके बहुत कुछ करता है। मैं कल जो भी दिया उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि what is your career. Ambition should be start from the beginning of this step. आज से ही तुम्हारा एम्बिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। एम्बिशंस बिना, विदाउट एम्बिशंस ए ह्यूमन बीइंग कैनॉट मूव। तुम जब घर से निकालते हैं हम लोग तो हमारा टारगेट होता है स्कूल जाएंगे, जाके ये करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको ज्ञान देना है, उनको सिखाना है, कैसे करना है, कैसे सीखेगा उन लोग, ये हम लोगों के दिमाग में। एंड व्हाट विल बी द योर मेंटालिटी। हम स्कूल जाएंगे, सर से बात करेंगे, जो भी नॉलेज है उनसे लेंगे। सो वी आर सेलिंग आवर knowledge and you are buying our knowledge. इकोनॉमी, ज्ञान हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड यू आर रिसीविंग द नॉलेज। इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट्स हो गया, आपकी डेवलपमेंट होना बाकी है। टेक फ्रॉम मी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। सो फटाफट बुक खरीद लो, अदरवाइज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। Until unless you read the book, only इस क्लास में से पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट योर एम्बिशंस और फर्स्ट योर टारगेट टू कम स्कूल, मीट मी। वी आर ऑलवेज हियर फ्रॉम 9 o'clock to 2:30 PM. सो यहाँ पे आओ, मिलो, एडवाइस लो, स्ट्रैटेजी स्टेप बता देंगे, बुक खरीद लो, कॉपी खरीद लो, एंड देन स्टार्ट। थैंक यू।